We will discuss about biomonitoring. Biomonitoring refers to measurement of chemicals in human body fluids and tissue such as blood, urine, breast milk, saliva or hair. Measurement of the levels of pollutant in children's bodies provide direct information about the exposures to environmental contaminant and measurement of women who may become pregnant currently and being breastfeeding so their exposure to potential effect can be developed. Biomonitoring measurement provides estimate the amount of the chemical absorbed into the body from the pathway, different pathway exposure, from injection, drinking, indigestion, inhalation, or from the air or from the water. So thus, it gives a cumulative estimate of biochemical burden of a person carries in their body, estimates the group. This is called as biomonitoring, which is associated with the biomagnification of bioaccumulation. So the bioaccumulation, which is nothing but the part of this biomonitoring. Hello, Good evening, sir. good evening. कैसा था सर होली? हाँ, होली खेला ठीक ठाक था। और स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? वॉइस कट रही है हाँ, स्क्रीन स्क्रीन दिख रहा है ना? हेलो, इज द स्क्रीन इज विजिबल? हेलो, ये स्क्रीन में विजिबल सर। हाँ हाँ। सो टुडे हाँ वी जी आर सर, हम्म हाँ बोलो। अभी ठीक आ रहा है सर, वॉइस हाँ अभी ठीक आ रहा है। हाँ हाँ, ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बायो मॉनिटरिंग। ये ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, इसका थोड़ा सा टॉपिक है तो यूनिट 1 विल बी कंप्लीट सिंस वी लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट स्टैक मॉनिटरिंग। सो स्टैक मॉनिटरिंग में कैसे आइसोकाइनेटिक था, उसका आइसोकाइनेटिक सैंपलिंग, ये सब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था। But today we are going to discuss about biomonitoring, and this biomonitoring is somehow it is relevant to bioaccumulations. ये आपने सुना होगा bioaccumulations क्या चीज है। So the toxic chemicals in anyhow it यस can सर, in toxic chemicals are enter once enter in our body, it cannot be excreted. Some such type of toxic chemicals are uh, accumulate in our body and become more and more when we are having more exposure to it. So monitoring is nothing but the measurement of how much the accumulant or how much the toxic chemical which can be accumulated in the body. So how it can be monitored and how it can be measured. मॉनिटर एक्चुअली दैट मीन्स क्या होता है, एक चीज को हमको पता करना है एनवायरमेंट में उल्टे तरीका का। पहले तो चीज चीज है जो कि पोल्यूटेंट है, टॉक्सिक पोल्यूटेंट कितना इफेक्ट कर रहा है बॉडी में, दैट इज डिफरेंट पार्ट। बट हमको जानना होता है कि कितना अमाउंट ऑफ द पोल्यूटेंट बाहर में ऑलरेडी है, वो हमको पता नहीं है। तो हम इनडायरेक्टली हम ये जान सकते हैं बाय मेजरिंग such type of bioaccumulant or toxic chemical which is deposited inside the body of any humans or anything, any living plants, animals, anything. So this biomonitoring refers to measurement of such chemicals in human body or fluid tissue
इवन इन ब्लड, यूरिन, ब्रेस्ट मिल्क, सैलिवा, हेयर, एनीथिंग। तो कुछ केमिकल्स एनवायरमेंट में कितना है, ये चीज कैसे पता चलेगा? बाय मेजरिंग द बॉडी पार्ट्स, हाउ मच chemicals can be available in the body by continuous exposure. So this type of experiment, this type of measurement is called as biomonitoring, and this biomonitoring gives direct information about the environmental level of exposure to the particular type of organism, or mostly in case of humans. So for example, a woman is pregnant, and if some chemicals are inhaled or chemical are exposed by a pregnant lady, then that may be transferred to a fetus or the child. So ये भी हो सकता है कि पोटेंशियली कितना इफेक्ट करेगा, वो सब चेक करने के लिए वी आर गोइंग टू मेजर द लेवल ऑफ द टॉक्सिक केमिकल इनसाइड द बॉडी. So this monitoring, biomonitoring provides the estimate amount of chemicals which is absorbed through different processes. ये हो सकता है कि एयर पोल्यूशन के अंदर भी हो सकता है. The man or the human can be exposed to air pollution, water pollution, or soil pollution anywhere. Through any means, any types of exposures, you can be gather the pollutant from the environment surrounding. So that may be either ingestion, drinking water, or inhalation of air, or anything. So the cumulative estimate of the sub chemical in a person's body can be found by the bioassay of the particular tissue. That process is called biomonitoring. हम यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कितना इफेक्ट हुआ उसको, हम इसलिए ये टेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि एनवायरनमेंट में बाहर कितना अमाउंट ऑफ एक्सपोजर वो लिया था, तो बाहर का एनवायरनमेंट का फैक्टर्स जान सकते हैं. इसके वजह से हमको ये बायो मॉनिटरिंग कर रहे हैं इनडायरेक्टली. पहले स्टैक मॉनिटरिंग, और जो मान लो कोई एयर केमिकल हो गया, एयर मॉनिटरिंग जो था, उसमें हम क्या करते थे, द गैसियस पोल्यूटेंट एंड द गैसियस पार्टिकुलर मैटर जो भी है एनवायरनमेंट का एयर क्वालिटी जानने के लिए टेस्ट करते थे. सिमिलरली उल्टा कितना, मतलब कोई पैरामीटर्स है, मान लीजिए वो केमिकल बाहर में अवेलेबल टेस्ट नहीं कर सकते किसी भी वजह से. सो हम लोग इनडायरेक्टली ये बायोमॉनिटरिंग इज द प्रोसेस टू नो द अमाउंट ऑफ द पोल्यूटेंट इन द एटमॉस्फेयर और इन द एनवायरनमेंट. ये उसका ही काम है बायोमॉनिटरिंग का. सो हाउ मच द पर्सन कैन बी एक्सपोज टू द पर्टिकुलर केमिकल्स दैट कैन बी पर्टिकुलर ओवर टाइम, मतलब कितना लाइफ टाइम में उसका कितना एक्सपोजर हुआ है, उसको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड बायोमॉनिटरिंग. सो कौन कौन सा केमिकल टेस्ट कर सकते हैं? दीज आर द लिस्ट ऑफ केमिकल्स व्हिच आर मोस्टली लीड, मर्क्यूरी, एंड कोटिनाइन, ए मार्कर एनवायरमेंटल टोबैको स्मोक एक्सपोजर. हम लोग जब पढ़े थे, निकोटीन, कोटिनाइन, ये सारे होता है कितना मतलब एक आदमी कितना एक्सपोजर हुआ है, कितना सिगरेट पिया हुआ मतलब 5 साल 10 साल में, वो कैसे पता चलेगा? दैट मेरी एनवायरमेंटल टोबैको स्मोक एक्सपोजर कितना हुआ है, दैट मे बी एनालाइज बाय टेकिंग ए टिश्यू और सैंपल, दैट मे बी ब्लड, यूरिन, एनीथिंग, स्वीट्स जो भी है, उसका एक सैंपल लेके टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा कि हाँ दिस ह्यूमन बॉडी आर एक्सपोजर टू दिस काइंड ऑफ द केमिकल. सो पॉली क्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स, polybrominated diphenyl ethers, and polyfluorocarbons, perfluorocarbons, perchlorate. These are the parthelous biphenyls A. These are the different types of chemicals which are found very little or quantity, but which can be affect the environment most. और ये सारे टेस्ट करने के लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है. मान लीजिए कोई जैसे कि सी ये बैक फिल्टर्स हो गया, पर्टिकुलर मैटर को रिमूव करना है, या कोई भी है, तो ये सारे जो टेस्ट होता है, सारी चीजें, ये कोई ऐसा है नहीं इसका पर्टिकुलर. so that can be monitored through this kind of bio monitoring. So these there are different chemical scientific finding related to this associated with mother exposure pregnancy. ये सारी चीज जानने के लिए भी हम लोग बायो मॉनिटरिंग कर सकते हैं. सो बायो मॉनिटरिंग क्या है, जस्ट थोड़ा सा आइडिया है. ये 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, 3 मार्क का भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें. नेक्स्ट टर्म इज बायो इंडिकेटर. बायो मॉनिटरिंग में हम क्या करेंगे, हम लोग उसको टेस्ट करेंगे सैंपल लेके. बायो इंडिकेटर में क्या होगा, द ऑर्गेनिज्म व्हिच इज एक्सपोज टू सम केमिकल्स, दे आर स्पॉन्टेनियसली गिविंग सम रिएक्शंस. कुछ बिहेवियर चेंज होगा, कुछ रिएक्शंस देंगे, तो उस टाइप का हम लोग चेंज कर सकते हैं, मतलब नोटिस करेंगे और वो इंडिकेट करेंगे. फॉर पर्टिकुलर एक्सपोजर द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म व्हिच इंडिकेट
something which can be marked by the humans, and that type of species are called bioindicators. So bioindicators are the organisms or some communities of organisms. एक ही organism हो सकता है और एक group of organism हो सकता है. For example, एक ग्रुप ऑफ एंट, बहुत सारे चींटी है, वो बहुत सारे वो अंदर में रहते हैं बिल में, मान लीजिए बहुत सारे चींटी एक साथ में बाहर आके बाहर में घूमने लगे, तो दिस इज ऑल्सो इंडिकेटर कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है मिट्टी में, इसीलिए वो लोग बाहर सॉइल से बाहर आ रहे हैं. तो देयर मे बी सर्टन पॉल्यूटेंट प्रेजेंट इन द सॉइल और मे बी सम अनफेवरेबल कंडीशंस इन द पर्टिकुलर सॉइल. तो ये इंडिकेट कर रहे हैं वो स्पेसिस. फॉर एग्जांपल और एक इंडिकेटर स्पेसिस है, मान लो बटरफ्लाई. बटरफ्लाई एक रीजन में बहुत सारे कम हो गए या बहुत सारे मरने लगे, कि मान लो कोई पर्टिकुलर स्पेसिस है, नदी में बहुत सारे फिश जो है वो सडनली मर गए. तो व्हाट इज इंडिकेट, दैट मीन द वाटर में बी टॉक्सिक ड्यू टू सम रीजंस. Without testing, without going for any lab, we can, by seeing the behavior and the organisms which are living in that particular area, we can give a statement about the environment. These species are called bioindicators. So it is either a organisms or a community, that means a group of organisms which reactions are observed respectively and evaluate the situations. उनका behavior जो भी है वो reaction क्या कर रहे हैं, उसको हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट बनाएंगे और उसको सिचुएशन का अंदाजा लगाएंगे. सो दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायो इंडिकेटर. दिस आर गिव सम क्लू और कंडीशन ऑफ द इकोसिस्टम. देखते हैं क्या क्या होते हैं. सो बायो इंडिकेटर्स हैज ए पार्टिकुलर रिक्वायरमेंट with regard to the set of physical and chemical variables and change in this variable. कोई फिजिकल और केमिकल चेंज हो गया, उसमें वो बायो इंडिकेटर स्पेसिस है, दे कैन बी रिएक्ट either or the change which may be presence or absence of some chemicals or physical chemical variable and suddenly increase the number. morphology changes भी हो सकता है, physiology changes हो सकता है और behavioral changes भी हो सकता है. So this type of things can be indicate some sudden changes of the environment or particular ecosystem, and the species are called bioindicators. So this physical chemical variable may be either biotic or abiotic factors जो है उसमें भी variable. For example, a water है, body है, suddenly water body temperature rises, so जो fish जो है या कोई भी वहाँ पे कुछ unknown species है वो पानी नहीं पी सकते हैं, या some algae or glooms are suddenly increases in a water body, then we can say that there is nutrient, suddenly phosphate and nitrogen nutrient they can be increased, यूट्रोफिकेशन स्टार्ट हो रहा है. तो इस टाइप का स्टेटमेंट हम लोग दे सकते हैं. तो ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन डीजल ऑक्सीजन कैन बी लेवल लो हो गया, ये भी बोल सकते हैं हम लोग. सो दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट कैन बी गिवन बाय सीइंग द रिएक्शंस और फिजिकल केमिकल चेंजेस. दीज स्पेसीज आर कॉल्ड बायो इंडिकेटर्स. ये कुछ नहीं है, इंडिकेटिंग द स्पेसीज विच इंडिकेटिंग about that environment or their ecosystem by some behavioral changes or something changes, physical or chemical changes. So bioindicator are respectively defined as species reacting to anthropological effect of the environment. Normally क्या होता है, बहुत सारे बायो स्पेसीज जो है that can be grow in their natural environment. If there is some interfere with the human by anthropological effect, sudden changes और हम लोग ने उसमें कुछ केमिकल दिया या कुछ भी हो गया ड्यू टू द एनी एंथ्रोपोजेनिकल एक्टिविटीज, bioindicator are react with this environment. So bioindicator for natural environment changes condition are not so much used. जैसे कि वो नेचुरल में जो थोड़ा बहुत चेंज होता है उसमें इतना रिएक्ट नहीं करेंगे, बट एंथ्रोपोलॉजी का चेंज होगा उसमें ज्यादा रिएक्ट करेंगे. सो ऑल companies difficult companies definition of biological indicator would be, स्पेशल डेफिनेशन दिया हुआ है इसमें. डेफिनेशन क्या है, इस स्पेसीज और ग्रुप of species that readily reflect the biotic and abiotic state of environment, represent the impact of the environmental changes in habitat, community or ecosystem, is or indicative of the diversity of this particular taxa and diversity. That means आप अपने इस वर्ड में लिख सकते हैं the group of species which can be reflect the biotic and abiotic changes in the environment by
showing its different behavior or some changes either in whole diversity or the ecosystem. So these are species are called as bioindicator species. So bioindicator species are useful in three situations. ये ज़्यादातर तीन केस में काम आते हैं. Why we are not measuring directly the concentration of some pollutants, or because we are using these bioindicators or the species or observing these changes. So ये कौन कौन सा सिचुएशन में काम आता है? पहला, where indicator environmental factor cannot be measured, जहां पे environmental factor measurable नहीं है. In situation, environmental factor past are considered such as climatic change and paleo biomonitoring. तो कौन सा जगह पे हम लोग क्लाइमेट चेंज को मेजर नहीं कर सकते या नहीं जा सकते? एग्जाम्पल है पेलियो बायोमॉनिटरिंग. पेलियो बायोमॉनिटरिंग इसका मतलब है इन पास्ट हम लोग पास्ट में नहीं जा सकते. ऑलरेडी चेंजेस हो गया है, बट वी कैन नॉट गो पास्ट टू सी द व्हाट आर द थिंग्स हैपेंड, दैट्स व्हाई दिस चेंजेस हैपेंड. फॉर एग्जांपल, डायनासोर्स आर एक्सटिंक्ट फ्रॉम द अर्थ. हम लोग तो 2 बिलियन ईयर एगो नहीं जा सकते, बट वी हैव टू क्यूरियोसिटी नो हाउ डायनासोर्स विल बी एक्सटिंक्ट. उनको एक्सटिंक्ट कैसे हुआ? ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, ड्यू टू द व्हाट इज द मेन फैक्टर्स, इसको जानना है. तो दैट कैन बी डन बाय दिस बायो इंडिकेटर्स. So how that can be done? We are going for paleo biomonitoring. That means we are paleo biomonitoring means paleontology, that means study of fossils. Fossils के बारे में study करना है और उनको monitor करना है. So that maybe gives you the idea about the environmental changes that already occur in the past. So we are gathering some information about the species. So this is one case where bioindicators are useful. For example, dinosaurs are the bioindicator of the environmental changes at that time. The fossils we are जो वहाँ पे जो fossils मिलेगा dinosaurs का, that are the bioindicators. Second case is it indicates factor is difficult to measure. For example, pesticide residue complex. ये जो कहाँ पे जो इंडिकेटर जो कोई भी केमिकल हम यूज करते हैं तो उसका जो रेस दैट मे नॉट बी मेजर और उसको कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता है मेजर करने के लिए. एग्जांपल, पेस्टिसाइड्स रेसिड्यू एंड द टॉक्सिक इफ्लुएंट और सेवरल इंटरेक्टिंग केमिकल्स. एक एग्जांपल्स है, एक वाटर में या कहीं पे भी हाउ मच, और एक एग्रीकल्चर क्रॉप्स है उसमें हम लोग बहुत सारे पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर बहुत सारी चीजें दिया हुआ है. तो उसमें हम लोग we cannot be identified a particular types of reactions because all these chemicals are mixed to form a complex things. So we cannot be identify a single chemicals. So in that case we are using these bio indicators to know the effect. Where our third factor is environmental factor is easy to measure but difficult to interpret. For example, weather observed changes ecological significance. जहाँ पे measurable नहीं है उसको qualitative ही examples दिया जाएगा. तो in that cases also we are using the bio indicators. वहाँ पे value नहीं लिख सकते, वहाँ पे बस उसको बोल सकते हैं कि हाँ it may be either good or either bad. It quality is either reduced or quality is either enhanced. In that cases we are going to use this bio indicator. So these bio indicator species are useful in these three categories. So this bio indicator are very much helpful. ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, 3 मार्क का, 4 मार्क का भी आ सकता है, 6 मार्क का भी आ सकता है, बिकॉज देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायो इंडिकेटर स्पेसीज. Let's see what are different types of bioindicator species. So normally there are 4 types of bioindicator species are there. See यहाँ पे है it is given as the organism or species. Some are called bioindicator and some are called biomarker and some are called indicators only. So indicators means that may be either physical, chemical, economical changes हो सकता है, but does not include the bio or plant species or animal species, being organisms. And biomarkers are some organisms that you are does not indicate any changes, but they only give the memorable things or give only significance level of these things.
So these are called biomarker. And bioindicators are 4 categories are there. First is pollution and bioindicator. Second is ecological bioindicator. थर्ड इज बायोडाइवर्सिटी बायो इंडिकेटर एंड फोर्थ इज एनवायरमेंटल इंडिकेटर. जैसे कि उसका नाम है पॉल्यूशन बायो इंडिकेटर, पॉल्यूशन लेवल इंडिकेट करेगा. इकोलॉजिकल बायो इंडिकेटर द हेल्थ ऑफ इकोलॉजिकल इकोसिस्टम्स, वेदर इकोसिस्टम इज गोइंग टू बी बूस्ट और गोइंग टू डाई. फॉर एग्जांपल यूट्रोफिकेशन हो रहा है, क्लाइमेक्स चेंज हो रहा है, सक्सेशन हो रहा है, तो इन दैट केसेस वो काम करेगा. बायोडाइवर्सिटी इंडिकेटर, व्हाट इज द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, व्हेयर द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू बी एक्सटिंक्ट, ये रीजन आपको जानना है. तो उसमें क्या करेंगे, उसका बिहेवियरल चेंजेस, वो सारे सिस्टम ट्रॉपिकल चेंजेस सब देखेंगे. The environmental indicators, so different environmental factors, physical, chemical, environmental indicator, they are also going to indicate by this some type of species. So there are 4 type of biological indicator or bioindicator: pollution indicator, ecological bioindicator, biodiversity bioindicator, and environmental indicator. So we may see the different bioindicators with this type of things. क्या थिंग है, पहले इफेक्ट आएगा, कुछ केमिकल्स हो गया, कुछ चेंजेस हो गया, दैट चेंजेस आइदर बी स्ट्रेस रेस्पॉन्स और आइदर डिफरेंट रिएक्शंस और दैट मे बी आइदर एनी काइंड्स ऑफ इफेक्ट और बिहेवियरल चेंजेस, ये सारे भी हो सकता है. सो दिस इज ड्यू टू द बायो एक्यूमुलेशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉक्सिक केमिकल. देन पहले क्या होगा, अर्ली वार्निंग होगा, देन कॉम्प्लेंस होगा, देन डायग्नोसिस होगा. वार्निंग मींस देयर इज सम डिफरेंट. फर्स्ट स्टेज में हम लोग देख सकते हैं. देन मान लीजिए फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ लेक वेयर लॉट्स ऑफ फिश आर डाइंग, पूरा लेक है उसमें बहुत सारे फिश मर गए हैं, तो पहले एक साथ में पूरा फिश नहीं मरेंगे, थोड़ा सा एक दो फिश मरना स्टार्ट होगा, वो अर्ली वार्निंग है. फिर कॉम्प्लेंस पे जाएगा, बहुत सारे फिश मरेंगे, फिर सडन हम लोग डायग्नोसिस करेंगे कि हाँ ठीक है पॉजिटिव मर रहे हैं, मतलब दैट मींस देयर आर सम थिंग्स हैपनिंग देयर. तो ये फेजेस है. तो हाउ दिस बायो इंडिकेटर्स आर गोइंग टू बी give some indicates the health of environment. So again these bioindicators are according to the aim of the bioindication, 3 types of bioindicators are distinguished. उसके bioindications के हिसाब से again 3 types of bioindicators are there: compliance bioindicator, diagnostic bioindicator and early warning bioindicator. ये उसके हिसाब से दिया गया है. Compliance indicator क्या है? For example, fish population attributes some measure in the at the population's community ecosystem level are focused on the issues such as sustainability of the population community of a whole. That means early diagnostic or warning that can be used that are also called as biomarker level. That means इसमें क्या होगा, ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, थोड़ा बहुत इफेक्ट आएगा. फॉर एग्जाम्पल कोई पार्टिकुलर केमिकल्स है उसमें, तो फिश का कलर चेंज हो जाएगा, उसमें ज्यादा मरना नहीं है, लेकिन फिश का कलर चेंज हो जाएगा, एक दो पीसेस का ये हो जाएगा. तो दैट इज द इनिशियल स्टेज, दैट इज कॉल्ड बायोमार्कर और ऑल्सो बायो कॉम्प्लेंस बायो इंडिकेटर. एंड एक्यूमुलेशन ऑफ बायो इंडिकेटर जैसे मसल्स, मोसेस, लाइकेंस distinguished by the different effect bioindicators being studied at the organizational level. ये different ecosystem में मान लो कोई muscles है, mosses है, lichens है, they can be grow, then we can say that the ecosystem is going to be changes. Successions बताए ना, succession क्या है, the ecosystem is going from nude to a forest economy ecosystem to a complex phase, climax phase. इन दैट केस क्या होगा, ये बेयर रॉक है, उसमें क्या होगा, थोड़ा लाइकन मोसेस पर स्टार्ट हो जाएंगे ग्रो करना. तो ये ग्रो होना है, दैट मींस एट दैट सम मॉइस्चर कंटेंट्स आर देयर एंड द वेदरिंग प्रोसेस इज गोइंग ऑन. ये सारी चीजें हम लोग उसको देख के बोल सकते हैं, दैट इज कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर. देन अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ बायो इंडिकेटर हमने डिस्कस किया हुआ है. एनवायरमेंटल इंडिकेटर बोलते हैं, इकोलॉजिकल इंडिकेटर, बायोडाइवर्सिटी इंडिकेटर, वी आर ऑलरेडी डिस्कस. तो उसका एग्जांपल्स देख लेते हैं. एनवायरमेंटल इंडिकेटर आर द स्पीशीज और ग्रुप ऑफ स्पीशीज रेस्पोंडिंग प्रियोरली टू द एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस और चेंजेस. उसका एग्जांपल्स है
sentinels, detectors, exploiters, accumulators, bioassay organisms. These are the different types of environmental indicators. इसका examples याद रखना पड़ेगा. Environmental indicator system is set of indicators aiming to diagnose the state of environment. Okay. Second is ecological indicator. This species is known to be sensitive to the pollution and habitat fragmentation and other stresses. The response of indicator is responsive to the community. इकोलॉजी में जो चेंजेस होगा उसमें इकोलॉजी का इंडिकेटर्स का काम है दिखाना. Biodiversity indicator means it can respond to the biodiversity, that is the variety of species. Biodiversity loss क्यों हो रहा है उसका species richness, endemism, genetic parameter, specific parameters, landscape parameter, ये सारा आ जाता है. जैसे कि बायोडाइवर्सिटी 3 टाइप का होता है, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी, गामा डाइवर्सिटी. उसके बाद स्पेसिस डाइवर्सिटी, इकोलॉजी सिस्टम डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी. तो ये सारे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी दे कैन बी, मान लीजिए इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, सो दे आर मोस्टली चेंजेस. सो बाय दिस टाइप ऑफ इंडिकेटर आर कॉल्ड द बायोडाइवर्सिटी इंडिकेटर्स. द नेक्स्ट सब टर्म्स आर कॉल्ड सेंटिनल्स. सेंटिनल्स किसको बोलते हैं? दीज आर द इंडिकेटर, स्पेशल टाइप ऑफ इंडिकेटर्स or bioaccumulation of indicators which kind of organisms, these are called sentinels. Sentinels organism accumulate concentrated pollutant in the surrounding from the food chain. वो क्या होगा, फूड चेन से सबसे ज्यादा टॉक्सिक केमिकल्स दे कैन बी accumulate themselves. This kind of organism are called the sentinels, and analysis of their tissue may provide the total number of pollutant and the quantity of pollutants, so in the local surrounding. So these are called sentinels. Next important term is keystone species. ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि बायोडाइवर्सिटी में होगा या इकोसिस्टम जब पढ़ते थे तभी होगा. कीस्टोन स्पेसीज दे इंपोर्टेंट स्पेसीज इन ए इकोसिस्टम. एक इकोसिस्टम है उसमें एक वेरी मच इंपोर्टेंट स्पेसीज है. विदाउट ऑफ द स्पेसीज the total ecosystem can be get disturbed. The species is which persistent large number of the species in ecosystem depends. उस कुछ species, एक species ऐसे होगा that can be linked to the different species. इस टाइप का species को बोलते हैं keystone species. The removal of the keystone species may affect the whole ecosystem and functioning. एग्जाम्पल ट्रॉपिक लिंक्स एंड इंजीनियरिंग. टोटल इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा इको कीस्टोन स्पीशीज को डिस्ट्रॉय किया जाएगा तो. फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट में मान लीजिए टोटल बटरफ्लाई गायब कर देंगे तो क्या होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा, फॉरेस्ट कम्युनिटी नेक्स्ट जनरेशन नहीं होगा. तो दिस इज द कीस्टोन स्पीशीज. दिस इज एग्जांपल ऑफ कीस्टोन स्पीशीज. तो दिस कीस्टोन स्पीशीज आर आल्सो एक्ट एज ए बायो इंडिकेटर. नेक्स्ट इज कॉल्ड एंडेंजर्ड स्पीशीज. यहाँ पे और भी लिखा है इकोसिस्टम इंजीनियरिंग स्पेसीज भी एक टाइप ऑफ स्पेसीज है दैट कैन बी आल्सो डायरेक्टली इंडिकेट द मॉडुलेट अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस. सो डैम बेवर्स और बेवर्स और इन रिवर्स, दीज आर कॉल्ड इकोसिस्टम इंजीनियरिंग और इंजीनियर्स. इकोसिस्टम इंजीनियर्स ये क्या करते हैं, दे कैन कलेक्ट डिफरेंट soils and different things in a river ecosystem or in a wetland ecosystem to convert them to a land ecosystem. ये उनका काम है. बहुत सारे कचरा एक जगह इकट्ठा करेंगे और धीरे धीरे इकट्ठा करते इतना सारा इकट्ठा करेंगे कि वो जो वेट सिस्टम होगा वो ड्राई में होकर लैंड कन्वर्ट हो जाएगा. सो दे हैव टू पावर टू चेंज द होल इकोसिस्टम्स. वाटर होगा रिवर इकोसिस्टम से पूरा लैंड इकोसिस्टम बन जाएगा. तो ये जो दीज आर कॉल्ड एनवायरमेंटल इंजीनियर्स और इकोसिस्टम इंजीनियर्स. एग्जांपल्स बेवर्स. so ये these also one type of ecos are called the indicators or biological indicators. next important term is endangered species. जैसे कि बायोडाइवर्सिटी केस में हम लोग पढ़े हुए हैं. endangered species क्या है? endangered species are the species which have decreased in the distribution of abundance number of past in times, so due to some anthropogenic impact. कोई एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट के लिए दिस स्पीशीज में भी रिड्यूसेस इन वेरी नंबर्स. जैसे कि इंडिया में चीता का कम हो गया है, पूरा बिल्कुल नहीं है, खत्म हो गया है. तो वी आर गोइंग टू बैक फ्रॉम जाम्बिया या कहाँ से चीता लाए थे यहाँ पे नरेंद्र मोदी ने. तो उसका मतलब क्या है, दीज आर द एंडेंजर्ड स्पीशीज. एक दिन क्या हुआ है वो विलुप्त हो जाएंगे यहाँ से, लेकिन that are also called endangered species. So due to the anthropogenic activities
these species may be act as a endangered species act as a eco bioindicators. So the red list different categories are there, जैसे कि doomed category, threatened to die category, immense to endangered category, endangered category, potentially endangered category, species with the early warnings list, and species with geographical restriction list, lack of data evaluate species not listed in the red list, and extremely rare. तो ये जो 9 कैटेगरीज है तो रेड, दिस इज द लिस्ट इन द रेड बुक. रेड बुक मीन्स जो डाइवर्सिटी इकोसिस्टम में जो क्या बोलते हैं विलुप्त होने के कगार में है, उनको ये 9 कैटेगरी में डिफाइन किया गया है. तो एंडेमिक स्पीसीज इन द थर्ड कैटेगरी. एंडेमिक स्पीसीज मीन्स वो अभी है लेकिन बहुत कम है और मरने के एक्सटिंक्ट होने के कगार में है, उसको एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं. सो दीज स्पीसीज आर आल्सो एक्ट एज इकोलॉजिकल indicators. And this ecology, the main critique of the includes why these are different ecosystems are ecology of rare species not well in the known, and classification of species categories differs. This red list to differ from animal to real sizes, and these are due to this anthropogenical impact, and this bioindicator can indicate the total environment of the what is the impact of this anthropogenic activity in the environment. This can gives a clear idea. So this is all about your bioindicators. So these bioindicators and bio क्या था ये bio monitoring, this may be a short type questions, ये 6 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है. तो bioindicators and bio monitoring, तो सिंपल थिंग्स है, इसमें कुछ नहीं है. डू यू हैव एनी डाउट्स? इसके कुछ पूछना है? बायो इंडिकेटर्स हो गया, ओके बायो सर. में कीस्टोन नो स्पेसिस क्या सर. हो सकता है, ये सारी चीजें. बोलिए. सर ये सेंटिनेल्स एक बार बता देंगे? कौन? सेंटिनेल्स. अच्छा, हेलो. सेंटिनेल्स एक टाइप ऑफ स्पेसिस है. जैसे कि यहाँ पे लिखा है सेंटिनेल्स. सेंटिनेल्स पहले हम कहाँ पढ़े थे? ये एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स. सेंटिनेल्स आर वन टाइप ऑफ एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स. बायो इंडिकेटर का जो कैटेगरीज है उसमें एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स में आता है सेंटिनेल्स, डिटेक्टर्स, ये देखिए सेंटिनेल्स, डिटेक्टर्स, ये एंड एक्सप्लोरेटर्स, एक्यूमुलेटर एंड बायोएस ऑर्गेनिजम्स. ये 4 टाइप का ऑर्गेनिज्म जो है दैट आर मोस्टली फॉर एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स. एंड दिस बायो इंडिकेटर्स आर the due to the change in environment, due to the anthropological activity mainly. वो चेंजेस हो सकता है आइदर एब्सेंस होगा, मान लो कोई स्पेसिस पूरा मर जाएगा, मिट जाएगा, मान लो कोई स्पेसिस ज्यादा ग्रो हो जाएगा, या उनका बिहेवियरल चेंज हो जाएंगे, या उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, फॉर एग्जांपल बॉडी फिजियोलॉजी चेंजेस हो जाएगा या कुछ चेंजेस हो जाएगा, सबको बोलते हैं बायो इंडिकेटर्स. बट पार्टिकुलरली फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ दिस केमिकल्स, मान लो कोई केमिकल्स है वो एक्यूमुलेट हो रहा है कोई स्पेसिस में, तो उस टाइप को बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन. एंड बायो एक्यूमुलेशन इज द एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल विद इन ए लाइफ साइकिल ऑफ ए स्पेसिस, नॉट अक्रॉस द स्पेसिस. अक्रॉस फूड चेन नहीं है, एक ही फूड चेन में कितना अमाउंट उसने जब से जन्म हुआ मरने तक कितना अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेट किया, उसको हम लोग कैसे पता चलेगा? उसको काटेंगे, उसका टिश्यू सैंपल लेंगे और पता करेंगे, उसको बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन. फॉर एग्जांपल डीडीटी. डीडीटी हम लोग स्प्रे करते हैं तो उसमें किस में जाता है? स्मॉल अमाउंट दैट कैन बी ईट बाय दिस टेकन बाय दिस प्लांट. जैसे कि इंसेक्टिसाइड्स है, प्लांट में स्प्रे कर दिए तो थोड़ा सा वहां पे जमा हो गया, किसमें? प्लांट में. प्लांट के थ्रू में किस में आएगा? एनिमल्स में. तो जब भी एनिमल्स में आएगा तो अमाउंट बड़ा हो जाएगा उसमें. But the sentinels are a particular types of organisms which have ability to accumulate these chemicals more. उसको बोलते हैं sentinels. Some groups of organisms which having power to accumulate this bioaccumulation in their tissue very rapidly, उनको sentinels बोलते हैं particularly. यहाँ पे नीचे आएगा sentinels में.
So these are the bioaccumulation indicators. That means इनका पास में ability, they have the ability to capture most of these pollutants and store in this body. And this type of organisms are called sentinels. And these accumulate and concentrate pollutant from the surrounding से डायरेक्ट accumulate भी कर सकते हैं या फूड के माध्यम से भी वो accumulate कर सकते हैं. And they can be stored in their tissue as a fat. वहां पे फैट के हिसाब से वहां पे रख सकते हैं. These are called sentinels and provides a time integrated estimate of the environmental value of pollutant. जब हम उसका टेस्ट को टेस्ट करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि हाँ ये 5 साल से ये केमिकल्स का एक्सपोजर में है, हाँ ये 2 साल से केमिकल का एक्सपोजर में है, इसका मतलब लाइफ साइकिल हमको पता है उस टाइप का ऑर्गेनिज्म का. फॉर एग्जांपल एक छोटा सा स्मॉल फिश की बात ले लीजिए. स्मॉल फिश है, उसका लाइफ साइकिल कितना है, मान लीजिए 3 मंथ्स है, 3 मंथ्स या 6 मंथ्स है. तो 6 मंथ में कितना अमाउंट ऑफ स्पेसिस उसने एक्यूमुलेट किया हुआ है, उसका जो बॉडी टिश्यू हम लोग टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा. सो दैट स्मॉल फिशेस इज कॉल्ड एज सेंटिनल्स दैट हैविंग द पावर टू एक्यूमुलेट दिस टाइप ऑफ बायो ऑर्गेनिजम्स. इसको सेंटिनल बोलते हैं. सेंटिनल एक ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं है. सेंटिनल्स क्या है, एक काइंड ऑफ स्पेसीज है जो कि ज्यादा बायोअक्यूमुलेशन का पावर रखता है, उसको सेंटिनल बोलते हैं. और डिफरेंट टाइप्स भी हैं यहाँ पे देखिए. यहाँ सेंटिनल्स के बाद डिटेक्टर्स भी हैं, एक्सप्लोएटर्स भी हैं, एक्यूमुलेटर्स भी हैं एंड बायोएस ऑर्गेनिजम्स. ये सारे चीज है जो कि that can be react to the foreign or alien species or alien chemicals or foreign chemicals in the surrounding due to the environmental activities. क्लियर हो गया थोड़ा बहुत? Yes, sir. तो बायो Hello. इंडिकेटर्स कितने टाइप के हैं बताइए? बायो इंडिकेटर्स मोस्टली 4 कैटेगरी. Environmental indicators. Yes, sir. बायोडाइवर्सिटी इंडिकेटर, Environmental, ecological, biodiversity, and pollution पॉल्यूशन इंडिकेटर. bioindicators. ये these are the different types of indicator bio indicators. But again bio indicators are defined 3 categories according to the bio indications. That is compliance indicator, diagnostic indicator and early warning indicator. 2 टाइप का उसका डिफरेंट किया हुआ है. जो 4 टाइप का इंडिकेटर था, देयर आर द टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स अकॉर्डिंग टू द नेचर, बट अकॉर्डिंग टू द इंडिकेशन देयर आर अगेन डिवाइड टू 3 कैटेगरी. यहाँ पे अर्ली वार्निंग इंडिकेटर, कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर एंड डायग्नोसिस इंडिकेटर. अर्ली वार्निंग इंडिकेटर का काम क्या है? अर्ली वार्निंग इंडिकेटर दैट कैन इंडिकेट अर्ली. सडन चेंजेस हो गया तो उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा, वो थोड़ा सा इंडिकेट करेगा. दैट इज अर्ली वार्निंग. ज्यादा चेंजेस नहीं होगा तो उसमें पहले से ही इंडिकेट कर देगा. कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर व्हिच कैन इंडिकेट आफ्टर सम चेंजेस और सम एक्यूमुलेशन टेक्स प्लेस और समथिंग टेकन. दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर. मतलब कुछ कंप्लेन करेगा, मतलब हुआ नहीं हुआ चेंजेस, कितना चेंजेस हुआ, उसके हिसाब से वो रिएक्ट करेगा. मान लीजिए कोई फॉरेन केमिकल से टॉक्सिक केमिकल्स आ गया पॉन्ड में, ठीक है, तो एक फिश है उसमें क्या कलर चेंज कर लेगा तुरंत. छोटा सा स्मॉल फिश है, व्हाइट कलर था वो रेड कलर हो गया मान लीजिए फिश का कलर. लेकिन वो ठीक सा घूम रहा है, कूद रहा है उसमें पानी में चल रहा है. वो अर्ली वार्निंग इंडिकेटर है. हाँ भाई ये कलर चेंज हुआ है, मरा नहीं है अभी तक. लेकिन मान लीजिए सेकेंड टाइप ऑफ क्या है, कोई स्पेसिस है, मान लीजिए कोई झींगा कैटेगरी का थे, उसमें बड़ा बड़ा फिश है, वो 8-10 फिश ऐसे मरे हुए दिखने लगे, वो उसमें पार्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं. तो दैट इज अ कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर. वो केमिकल की वजह से वो लोग मरने लगे, धीरे धीरे दिखने लगे, तो मतलब नंबर रिड्यूस हो रहा है उनका. तो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स. पहले 1000 थे, फिर जैसे केमिकल इंक्रीज हो गया 500 बन गए, तो आधा हो गया, आधा मर गए. तो ये कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर में आएंगे. थर्ड कैटेगरी है डायग्नोस्टिक इंडिकेटर. डायग्नोस्टिक इंडिकेटर क्या है? वी कैन डायग्नोस्टिकली वी कैन ट्रीट देम. मतलब उनको टिश्यू को लेंगे, टेस्ट करेंगे, फिर पता चलेगा उनका क्या चेंजेस आया हुआ है. दैट इज कॉल्ड डायग्नोस्टिक इंडिकेटर.
वो बाहर से ऐसे चेंज हमको नहीं दिखाई देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको बायो ऐसे करेंगे, डायग्नोस्टिक करेंगे, व्हाट इज द लेवल ऑफ द पार्टिकुलर थिंग दैट इज डायग्नोस्टिक इंडिकेटर। तो ये जो है अकॉर्डिंग टू द इंडिकेशंस, ये 3 टाइप का इंडिकेशंस है। एंड बायो मॉनिटरिंग किसको बोलते हैं बताइए? ये तो बायो इंडिकेटर का था, बायो मॉनिटरिंग पहले हम जो पढ़ा। व्हाट इज बायो मॉनिटरिंग? 2 मार्क का क्वेश्चन है, मान लीजिए क्या लिखना है? 2 मार्क के क्वेश्चन में सर। हाँ, बायो मॉनिटरिंग सिर्फ आप एक डेफिनेशन बताइए। हेलो। हाँ, हेलो। यस सर। बायो नेटवर्क चलाइए। बायो मॉनिटरिंग और बायो इंडिकेटर 2 चीजें इसमें। बायो इंडिकेटर मतलब वो लोग खुद अपने आप इंडिकेट करेंगे। बायो मॉनिटरिंग मतलब वी आर गोइंग टू मॉनिटर। बायो इंडिकेटर एक स्पेसिस है, बस बायो मॉनिटरिंग एक पर्टिकुलर स्पेसिस नहीं है। आइदर ह्यूमन हो सकता है, कोई भी स्पेसिस हो सकता है। डिफरेंस आ गया ना समझ में थोड़ा सा? जी सर। जी। हाँ, ये मैंने उसमें अपलोड किया हुआ है, ये वाला फाइल। उसमें एक्चुअली मैंने समराइज किया हुआ है, इसमें बहुत सारे है इसमें। बायो मॉनिटरिंग क्या है, बायो इंडिकेटर स्पेसिस क्या है, तो वर्ड फाइल में समराइज करके लिखा हुआ है बस। ये इसमें है। आप लोग उसमें वो ग्रुप में उसमें डाउनलोड कर लीजिए। जो गूगल फॉर्म उसमें है ना, गूगल क्लासरूम में। और एक बार यस सर, इसी फॉर्मेट में है ना? हाँ हाँ, ये वर्ड फाइल है, ये अभी जो मैंने देखा था ना, ये उसमें मैंने अच्छा समराइज अच्छा। करके रखा हुआ है इसमें। तो इसको ही आप लोग डाउनलोड ठीक। करके एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। डन सर, डन। डन। हम्म। पक्का। ठीक है सर। इसका इम्पोर्टेंट है ये, खास करके आता है ये बाय, ये मतलब शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन, जैसे कि स्टैक मॉनिटरिंग हो गया, उसका मान लीजिए 4 मार्क का शॉर्ट क्वेश्चन है, स्टैक मॉनिटरिंग, रिफाइंड स्टैक मॉनिटरिंग, तो थोड़ा बहुत आएगा। 2 मार्क का क्वेश्चन जैसे कि उस टाइम हमने पढ़ा था आइसोकाइनेटिक सैंपलिंग क्या है। हम सिमिलरली ऐसे यहाँ पे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायो इंडिकेटर एंड बायो स्पेसिस, अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायो इंडिकेटर। ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, ये टाइप क्वेश्चन मतलब लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क का नहीं आता है, लेकिन ये आता है ये सारे एग्जाम्पल्स। ठीक। ठीक है। यूनिट 1 ठीक है अभी सर। खत्म हो गया, तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, वो सॉइल पोल्यूशन और रेडियो एक्टिव पोल्यूशन से। और 3 4 छोटा छोटा यूनिट है, आराम से हो जाएगा वो। अब तो ओके इंटरनल सर। एग्जाम आपको ओके। नहीं देना पड़ेगा ना शायद? नहीं नहीं सर। हाँ हाँ, क्योंकि हम लोग एक्चुअली यूनिट इंटरनल में यूनिट 1 और यूनिट 3 से आएगा, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको देना नहीं पड़ेगा। तो यूनिट 3 बाद में पढ़ते हैं, पहले यूनिट 2 पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं तो एक्सटर्नल भी नहीं देने के चक्कर में हूँ अभी तो। क्यों? मेरे को सर बाहर जाना है, थोड़ा हमारा कंपनी का ऑडिट है हाँ बाहर। हाँ। तो कहीं हमारा विजिट शेड्यूल है पहले से ही। अच्छा, तो एक्सटर्नल मान लीजिए नहीं देंगे तो भी बाद में भी दे सकते हैं ना, सप्लीमेंट्री करके, उसमें कोई नहीं है। इतना पैसे खर्च कर रहे हैं तो ये एक्सटर्नल एग्जाम तो हो ही जाएगा, उसमें कुछ तो क्या है। फैसिलिटी देगा ना। हम्म। हाँ, सप्लीमेंट्री या ऑनलाइन कुछ ना कुछ तो ऑप्शन होगा ही। हाँ हाँ, है ऑप्शन है, क्यों नहीं है। सप्लीमेंट्री ठीक है है, सर। जैसे कि ठीक। मान लीजिए ये आपका सेकंड सेमेस्टर है ना, तो हाँ जी सर। इस टाइम मान लो नहीं भी दिए, एक्सटर्नल एग्जाम नहीं दिए, तो थर्ड सेम में क्या होगा, थर्ड सेम होने से पहले एक सप्लीमेंट्री आता है, उसमें देंगे, तो सेकंड सेम और थर्ड सेम दोनों का एक साथ में हो जाएगा उसमें। अच्छा सर। हाँ हाँ, ये है फैसिलिटी है उसमें। बस ओके आपको ओके। 500 या 600 रुपया पर जो है उसका फॉर्म भरना पड़ेगा राइट टाइम पे, उतना ही है। अच्छा। हम्म। ठीक है सर। उसमें क्या सप्लीमेंट्री में क्या होता है एग्जाम में सर? तो कुछ नहीं है, बस जिसका रह जाता है वो आके एग्जाम दे देता है। अच्छा, मतलब वो दोनों सेमेस्टर का एग्जाम एक साथ में देना है? हाँ, ऐसे समझ सकते हैं, इस टाइप का। अच्छा अलग अलग डेट में होता है, लेकिन मतलब रेगुलरली होता रहता है अच्छा। अच्छा, अलग इस अलग डेट सेमेस्टर में में। होता हाँ। है। ठीक है सर। हम्म। ठीक। ठीक है चलिए। सर। ओके सर। ओके। चलिए, गुड नाइट। थैंक यू सर। बाय। गुड नाइट सर। बाय।